السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں حافظ یونس کا چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں پیر اجمل رضا قادری صاحب کا بہت خوبصورت بیان پیش کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ آخر تک ضرور دیکھیں۔ شکریہ۔ رب جو فیصلہ کر دے، ہم بڑی جلدی گھبراتے ہیں، الجھ جاتے ہیں، ہاتھ پیر پھولنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں جو میں چاہوں وہ ہو جائے۔ تو یہ دعویٰ درست ہونا وہی چاہیے جو رب چاہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جو قرآن مجید فرماتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہے اور صحابہ بھی اللہ سے راضی ہے، فرماتے ہیں یہ جو نقطہ ہے نا کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہے، یہ بڑا قابل غور ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تو بڑا کریم ہے، وہ تو راضی ہو ہی جاتا ہے، بندہ نہیں راضی ہوتا۔ بندے کے دل میں روز ایک نئی خواہش پیدا ہوتی ہے، ایک نیا مطالبہ کرتا ہے، ایک چیز ملتی ہے پھر ایک اور طلب اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ انسانی خواہشات کا پیالہ کبھی بھرتا نہیں ہے، یہ راضی نہیں ہوتا، مطمئن نہیں ہوتا، اطمینان نہیں اسے حاصل ہوتا۔ فرمایا بندے کا راضی ہونا یہ مشکل کام ہے، اللہ تو کریم ہے، کرم کر دیتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ بھی راضی ہو، رب کے فیصلے کو قبول کرے، تو پھر شان یہ ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق سے راضی ہو جاؤ، وہ تمہاری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن پہلے تم تو راضی ہو، تم تو راضی ہو۔ بندہ راضی نہیں ہوتا، ہر وقت شکوے، ہر وقت شکایتیں، ہر وقت ناراضگیاں، ہر وقت گلہ، ہر وقت آزمائش، ہر وقت کسی نہ کسی مقام پر کسی نہ کسی پریشانی کا اظہار۔ مطمئن زندگی گزاریں، تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کریں طبیعت میں، اپنے اندر اطمینان لائیں، سکون قلبی پیدا کریں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر بندہ دل ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے جسم کو تندرست بنایا ہے، اس بات کو سوچ کے اپنے آپ کو ٹھنڈک دیں۔ آپ محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی دولت عطا کی ہے، اس نعمت کو یاد کریں، ٹھنڈک پیدا کریں۔ یہ دیکھیں مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، ٹھنڈک پیدا کریں۔ اور زیادہ دل ٹھنڈا کرنا ہو نا اللہ اکبر، تو پھر یہ سوچیں کہ وہ کتنا کریم ہے کہ میرا سینہ اس نے ایمان سے بھر دیا ہے۔ میں مومن ہوں، رسول کریم علیہ السلام کا غلام ہوں، ٹھنڈا ہو جائے گا دل۔ تو آپ محسوس کریں گے کہ طبیعت کے اندر قرار آیا، لیکن زیادہ الجھاؤ نہیں۔ دیکھیں محنت کرنا ہمارے ذمے ہے، وہ خوب کرنی چاہیے۔ نتیجہ اپنی مرضی کا نہیں مانگنا، نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنا ہے۔ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں نا، جتنے نبی آئے 1,24,000 کم و بیش، سب انبیاء کامیاب ہو کے گئے دنیا سے۔ نوجوان زیادہ غور کریں، یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا یار میں مخلص بھی ہوں، محنت بھی پوری کرتا ہوں، کوئی بددیانتی بھی میرے اندر نہیں ہے، پھر نتیجہ کیوں ٹھیک نہیں نکلتا؟ غور کریں بات پر۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، سارے کامیاب ترین زندگی گزار کے گئے، کیا بات، لیکن کسی نبی کا کلمہ چند لوگوں نے پڑھا ہے، کسی کا چند 100 لوگوں نے پڑھا۔ اللہ اکبر، 950 سال تک تبلیغ، پھر غور کرو، 950 سال تک تبلیغ اور چند لوگ مسلمان، اس کو سمجھے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ لوگ کامیاب گئے دنیا سے، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ کسی کا دل تو اللہ تعالیٰ نے پھیرنا ہے نا، اپنی حکمت سے، اپنی مرضی سے، نبیوں کی بارگاہ تک اس نے پہنچانا ہے۔ نبی کیوں کامیاب گئے؟ اس لیے کہ جو ڈیوٹی اللہ نے ان کی لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری سر انجام دی۔ باقی نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ اللہ کی حکمت ہے۔ ہم نا بہت زیادہ الجھ جاتے ہیں، بعض اوقات بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ۔ وہ ایک دوست مجھے، ہمیں بھی سناتے ہیں نا لوگ مایوسی والی باتیں آ کے، بڑے حالات خراب نے، ہماری جماعت کا تو بڑا خستہ حال ہے، آپ کو کیا بتائیں، لوگ دور ہو گئے،
लोग डिस्टर्ब हो गए, लोग डिसहार्ट हैं, लोग हमसे मायूस हैं। मैं क्या तेरी गल होएगी, साढ़े को तो बंदे सामने नहीं जाते। आप क्यों मायूसी की बातें करते? ये आपकी बात होगी, हमारा तो कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर फिर लोग आते ही गए, फिर कारवां बनता गया। ये आप कभी मंजर देखे ना, ये छतों पे भी दोस्त हैं, खिड़कियों से भी झांक रहे हैं। अरे मैं गुसारो सवेरे सवेरे, खराबात के गिर्द फेरे बफेरे, कभी इस तरफ भी गुजर कर को देखो, बड़ी रौनकें हैं फकीरों के डेरे। तो मायूसी किस बात की है, परेशानी किस बात की? बिला वजह आप तनाव की बात करते हैं। ये सच्चों की जमात है, इसमें सच्चे रहे हैं और कयामत तक सच्चों की जमात ही गालिब रहेगी। तो इतनी जल्दी उलझ जाना क्यों, मैंने काम किया है तो नतीजा नहीं निकला। भाई आप अल्लाह पे छोड़े, मकाम तस्लीम और रजा को इख्तियार करें। और ये बड़ा लतीफ नुक्ता है कि अपने रब से राजी रहें, अपने रब से राजी रहें। हजरत सुफियान सौरी ने दुआ मांग रहे थे, या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा। दुआ मांग रहे, या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा। तो पर्दे में ना हजरत राबिया बसरिया भी बैठी थी। तो पर्दे के पीछे से बोली, कहने लगी चले आगे भी कुछ मांगे। तो वो सुफियान सौरी फरमाने लगे आपको क्या हुआ? तो कहने लगी आप बड़ी देर से कह रहे हो या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा। पहले दिल पे हाथ रख के बताएं आप अपने अल्लाह से राजी हैं? आप तो रोज कहते हैं फलानी शय कोई नहीं मिलनी चाहिए, फलानी कमी है पूरी होनी चाहिए। पहले तू तो राजी हो। तू के खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती पर जहां मैं हूं वहां कोई नहीं है। तू मकामे शुक्र पे तो आ, पहले तू तो मान। वो जिस हाल में रखे उस हाल में रह के देख तो सही, मेहनत पूरी करें, असबाब सारे जमा करें, लेकिन फिर राजी रहे। दुर्रे मारते थे कुफार सैयदना बिलाल अबशी को, रेत पे घसीटते थे, गर्म रेत पे तकलीफें देते थे, पर हजरत बिलाल अपने रब से बड़े राजी थे। अल्लाहु अकबर। हजरत खुबाब इब्न अर्त कहते हैं मुझे कोयलों पे लिटा दिया था उन्होंने, और मेरे सीने पर पत्थर रख दिए थे, और मेरी चर्बी पिघली थी तो वो कोयले बुझे थे, पर शिकवा एक मिनट के लिए भी नहीं किया। वो अपने रब की रजा पे राजी थे। हमने किया भी कुछ नहीं, ड्यूटी भी कोई नहीं, मुशक्कत भी कोई नहीं, काम भी कोई नहीं, और टेंशन भी सबसे ज्यादा है, परेशानी भी बहुत ज्यादा है। खुदा के बंदो अपने मालिक के फैसलों को मानना सीखो। इसमें हुस्न है, इसमें ठंडक है, इसमें तसल्ली है। बहुत सारे लोग जिंदगी में कुछ और बनना चाहते थे, पर अल्लाह की रजा कुछ और थी। तो आप रब की रजा को मान लें, तस्लीम कर लें, कबूल कर लें, लेकिन उलझे उलझे रहना, परेशान रहना, हर वक्त सोचते रहना कि पता नहीं मामला दुरुस्त है कि नहीं। कुछ थोड़ा सा ना मुनफरद जिंदगी को जिए, इनफिरादी। यानी अगर कभी तकलीफ आए तो सुख भी तो आए हैं ना बड़े सारे, बहुत अच्छे। सारी जिंदगी दुख तो नहीं ना रहे। वो किसी खातून का इख्तलाफ हो गया था अपने शौहर के साथ, 3 दिन पुराना। तो वो किसी सियाने आदमी को पंचायत में 3 दिन की बातें सुना रही थी। इसने मुझे ये कहा, इसने मुझे बुरा भला कहा, इसने मुझे थप्पड़ मारा, इसने मुझे ये तकलीफ दी। तो बुजुर्ग सियाने थे, वो कहने लगे बेटा शादी को कितनी देर हो गई? उसने मिसाल दे रहा हूं, समझ ले। उसने कहा 15 साल। कहने लगे बेटा ये तो तू 3 दिन की बात बता रही है ना, बाकी भी कोई बता। कभी शौहर ने जोड़ा लेके दिया हो, कभी इसने तुझे तोहफा दिया, वो 3 दिन के सिर्फ दुख ही याद है। भाई सुखों वाली भी कोई। महमूद गजनवी किन्नो खा रहे थे, माल्टा। तो वो उन्होंने पहला किन्नो छीला, उसके ऊपर से छिलका उतारा, तो एक टुकड़ा पहली काश उसकी अयाज को दी। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और गट गट करके खा गया। दूसरी महमूद ने अपने मुंह में रखी तो बड़ा कड़वा है भाई, बड़ा कुसैला है, बड़ा तुर्श है, बद जायका है, थूक डाली। और फिर कहने लगे याज तू खा ही गया है, जरा बराबर भी तूने
इजहार नहीं किया कि कड़वा कुसैला बदजायका किन्नो है। तो याज कहने लगे बादशाह मैंने ना जायका देखा है ना किन्नो देखा है, मैंने तो ये देखा है कि हाथ किसके हैं। सारी जिंदगी तेरे हाथों से मीठे मिले हैं और खाए हैं, और आज एक कड़वा अगर मैं थूक देता तो आईने वफादारी तो नहीं था ना। हाँ हाँ, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, दुख कबूल। लफ्ज कबूल का पता है ना आपको, कभी जिंदगी में आपने कबूल कबूल कहा होगा, जो रह गए हैं वो कह लेंगे। तो ये कबूल कबूल भी बड़ा मजेदार है। कहते हैं दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, बस राजी रहन प्यारे। दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, राजी रहन। और देखो कैसी लतीफ बात की एक दरवेश ने, कहने लगे मारो मारो मैनू मार मुकाओ, मारो मारो मैनू मार मुकाओ, कोई उजर ना पेश ले आवा, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, ते सुख नू चुल्ले डावा। भाई इतने शिकवे ना पैदा करें, मुतमईन रहना सीखे, जिंदगी में जो नेमतें हैं उनके साथ जीना सीखे, खुश रहना सीखे, इत्मीनाने कल्बी के साथ वक्त गुज़ारे। सहाबा की शान ये है कि वो अपने रब से राजी रहे। जब उन्हें मक्के में पत्थर पड़ते थे तब भी वो राजी थे, और जब अपना घर बार छोड़ के मदीना हिजरत करनी पड़ी तो फिर भी बड़े राजी थे। और जब 14 सहाबा बदर में शहीद हो गए तो फिर भी वो बड़े राजी थे। और जब 70 लोग बदर में शहीद, उहद में शहीद हुए, 70 या 72 लोग शहीद। इधर देखो, हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, सुबह जब जंग होनी थी ना तो रात मेरे पास हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रदी अल्लाह ताला अन्हु आए, कहने लगे एक दुआ ना मांगे दोनों भाई मिलके। आप दुआ मांगे, मैं आमीन कहूंगा, फिर मैं मांगूंगा, फिर आप आमीन कहिएगा। हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने कहा ठीक है। मैंने दुआ मांगनी शुरू की। मैंने कहा या अल्लाह, कल मेरा किसी तगड़े काफिर से मुकाबला हो, वो मुझसे लड़े, मैं उससे लड़ूं, फिर मैं उस पर गलबा पाऊं तेरी तौफीक से, फिर उसे गिराऊं, वो दीन के उस दुश्मन को कत्ल करूं, फिर उसकी जिरा तलवार नेजा उठा के माले गनीमत में जमा कराऊं। कहते हजरत अब्दुल्ला आमीन कहते रहे, दुआ खत्म हो गई। अब वो कहने लगे मैं दुआ मांगूंगा, आपने आमीन कहना है। फरमाते वो दुआ मांगने लगे, कहने लगे या अल्लाह, कल मेरा ना किसी तगड़े काफिर से मुकाबला हो, वो मुझसे लड़े, मैं उससे लड़ूं, और जब हम गुत्थम गुत्था हो जाए तो ऐ अल्लाह फिर वो काफिर मुझ पे गलबा पा ले। तो मैंने यूं आंख खोली, ये क्या दुआ हुई? कहने लगे अल्लाह फिर वो मुझे गिरा दे, फिर वो मुझे शहीद कर दे, फिर वो मेरी आंखें निकाल ले, नाक काट दे, कान काट दे, वजूद के टुकड़े टुकड़े कर दे। कहते हैं फिर वो कहने लगे अल्लाह, जब मैं कटा हुआ वजूद लेके तेरे हुजूर हाजिर हूं ना, तो फिर तू मुझसे पूछे कि अब्दुल्ला ये तेरा हाल किस लिए हुआ? तेरा तो गोया किसी से जाती मामला नहीं था, ये हाल किस लिए हुआ? तो मैं चाहता हूं मैं तेरी बारगाह में अर्ज करूं, मालिक ये तेरे लिए कराया है, तेरे हबीब के लिए कराया। और अर्ज ये है कि तू सिर्फ इतना फरमा दे कि अब्दुल्ला सच कहता है। ओ भाई, सारी जिंदगी सुखों के सौदे करने, लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, अल्लाह ने इंसान को मुशक्कत में रहता हुआ पैदा किया। आज जिस अजीम हस्ती का आप यौम मना रहे हैं, सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने अपना सारा कुछ दीन के लिए पेश कर दिया। उस वक्त कलमा पढ़ा जब अभी थोड़े से लोग मुसलमान थे। ये ना भाइयों का भाइयों से बड़ा प्यार होता है, चचा भतीजों का भी आपस में बड़ा। वो बंदा कह बैठता है अपने बच्चों के सामने कई दफा ना, कि भरा ने मैंने बड़ा तंग किया है, मेरा हिस्सा ले गया है, फलानी जगह तो बात कर बैठता है शिकवा, फिर वो अंदर प्यार ही होता है। एक दफा जरूरत थी चचा जान को, किसी ने बताया कि आपके भतीजे को अबू जहल ने तकलीफ दी है,
फिर वो दौड़े आए, अबू जहल बैठा था तो मारा उसे। अबू जहल को पता था ये दलेर बड़े, जर्री बड़े, जुर्रत नहीं थी आगे, बल्कि आजिज़ी करने लगा। कहने लगा हमजा मुझे मार रहे हैं, आपको पता तो है वो हमारे बारे में क्या कहते। उन्होंने नया दीन माज़अल्लाह इजाद कर लिया है। तो इतना मोहब्बत में गलबा था हजरत अमीर हमजा को, फरमाने लगे अगर ये बात है तो सुन, आज के बाद मेरा भी दीन वही है जो मोहम्मद अरबी का दीन है। फिर बड़ा प्यार किया उन्होंने, और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी उनसे बड़ी मोहब्बत फरमाई। मेरे करीम फरमाने लगे मुझे मेरे चचाओं में सबसे बेहतर हजरत अमीर हमजा है। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे तो खैर काफी सारे लोग मोहब्बत से कह देते हैं कि बच्चा पैदा हुआ है कोई नाम बता दें, आपसे भी मशवरा करते होंगे, कितने सारे लोग हैं आप। इतने बड़े मजमे में क्या कोई ऐसा शख्स है जिसे किसी ने कहा हो कि बच्चे का नाम रखना है तो वो कहे मेरे चचा के नाम पे रख लो? बहुत अच्छे, क्या बात है। कितने सारे लोग हैं, ये मेरे चचा का नाम है और मुझे चचा बड़ा प्यारा है लिहाजा ये नाम आप भी रख लें। कहा है कभी किसी ने? चलो घर जाके ना गल करे अजे उन जेवे के चंदा सिर्फ मामू क्यों होता है, चाचू क्यों नहीं होता? एक बड़ी समझने वाली बात है। कहते हैं चंदा मामू, भाई चंदा चाचू क्यों नहीं? चाचू जितना मर्जी खूबसूरत हो, चंदा हो सकता है। तुसा गल की है भी घर जाके नहीं करनी। ओ भाई कुछ मामलात में ना कहीं हम किसी एक कोने पे साइड मारते, और ये दोनों तरफ से होता है। वालिद भी ऐसा करता है, वालिदा भी करती है, एक तरफ से नहीं होता। रिश्तों में तवाज़ुन रखना चाहिए, दोनों जानिब मोहब्बत का जोर होना चाहिए। कभी किसी ने नहीं कहा होगा मेरे चचा के नाम पे नाम रख लो, लेकिन एक शख्स ने नबी रहमत अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज की मेरे यहाँ बेटे की विलादत हुई है, नाम क्या रखूं? फरमाया मेरे चचा के नाम पे हमजा नाम रखो, इनके नाम पे नाम रखो, इनके नाम से बरकत लो। तो भाई हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु से वो प्यार था, बड़े बहादुर थे। उन्होंने फैसला किया ना दीन कबूल करने का तो एक मिनट नहीं लगाया। अबू जहल से कहा जा फिर मेरा भी वही दीन है। हमारे नौजवानों में कुव्वत फैसला ही कोई नहीं, ये 2 मिनट का क्लिप देखते हैं और इनके इरादे बदल जाते हैं। फलाना भी मोटिवेशनल स्पीकर आ गया तो फलाना भी आ गया। भाई कोई राय भी होती इंसान की, उसका कोई अपना भी नुक्ता नजर होता है। ये क्या बात हुई, जो आया जिस तरह की बात की आप मान गए। आसाबी मजबूती पैदा करें, आप फैसले की ताकत पैदा करें, आपने किस तरफ जाना है वो फील्ड इख्तियार करें, और डरे डरे फैसले ना करें, सहमे सहमे फैसले ना करें। हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो हालात बदल जाते हैं, एक जैसे नहीं रहते। ताकतवर फैसले करना सीखें। हम किसी जगह अकीदत भी रखते हैं, शागिर्द भी होते हैं, दीनदार भी होते हैं, नमाजी भी होते हैं, हर साल उम्रा भी करते हैं, पर हमारे फैसलों का हाल ये होता है कि शादी के मौके पर हम अपनी औलाद को भी नहीं समझा सकते कि भाई ये बैंड बाजा नहीं बजाना, ये गैर शरई है। अपने घर में भी दीन नाफिज करने की पोजीशन में नहीं होते, तो कहां है हमारी कुव्वत फैसला? आप हजरत अमीर हमजा से सीखें, ताकतवर फैसले करें, और बंदे ने इरादा ही करना होता है, मदद तो अल्लाह फरमाता है। दूसरी बात, हजरत अमीर हमजा ने जब कलमा पढ़ लिया ना, फिर जान दिल वतन हर चीज दीन पे कुर्बान कर दी। आपने एक काम करना जो है, फिर थका थका काम करने का क्या मतलब है? काम जो करना है, एक बुजुर्ग थे वो कहा करते थे कि यार आप मौलवी हैं, कोई आपको मौलवी साहब कहे तो गुस्सा नहीं करना, इसको शर्म वाली बात नहीं बनाना, ये तो नाज है हमारा। एक काम करना है तो फिर उसमें झिझकने का क्या मतलब, फिर उसके अंदर हर वक्त परेशान रहने का क्या मतलब? जो काम करें फिर। कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मज़ीद दीनी बयानात के लिए हमारे चैनल हाफिज़ यूनुस को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए।